Okay, I think we are live now from the Sunshine Immigration Consultancy page. Hello guys, my name is Sunny Mehra and I am the India representative of College of the Rockies, British Columbia. First of all, I would like to thank the Sunshine Immigration Consultancy for inviting me on this particular platform, which is Facebook live session for all the students who are looking for the opportunities in Canada for their higher studies. Due to this particular pandemic COVID-19, all of us are restricted at our homes and we are very in a difficult situation how we can get admission to the institute or in the institute of in Canada, obviously for the higher studies. So as a public college, I am from College of the Rockies and we are a public college. It's a government funded college. So I would like to share a complete information, a latest information about the current scenario in the Canadian education system, definitely, and obviously for the college also. So without further ado, definitely I will share each and every thing with you. So first of all, as I said, my name is Sunny Mehra and I am the India manager of College of the Rockies. This particular college, it's a public funded college and it's a government college, and we are in British Columbia. So British Columbia province is very good province in terms of its success rate, in terms of its job opportunities as compared to other provinces. Obviously, College of the Rockies is a very popular college because we are in #1 ranking in student satisfaction, which is international student satisfaction. So we are providing each and every support to our student from very first day. Second thing, the job opportunities what we are providing to our students in our city, in our campuses basically, which is Cranbrook city. So this particular city is very popular. So let me tell you about more about the city. Obviously, although we have 5 regional campuses and 1 main campus, which is Cranbrook. So this particular city, Cranbrook, is a very beautiful city, very well versed city. The most important thing, although it's in regional area, it's 80 minutes flight distance from Vancouver and 40 minutes flight distance from Calgary, but this particular city is full of job opportunities and modernization in the city, obviously. So as I said, this particular city is a very popular city just because the large number of international tourists go there and enjoy their vacations. So their economy runs on tourism, hospitality, mining and construction business. So their government also support these kind of businesses to grow their economy. As I said, this particular city is very much beautiful, surrounded by the mountains, lakes. Adventure sports is a big what you can say attraction in this particular city, like river rafting, mountain climbing, trekking, skiing, hiking, camping. So these kind of adventure sports are there. So international tourists will go there and enjoy their vacations. So as far as the student opportunity is concerned and job opportunity is concerned, College of the Rockies will help them to get more job opportunities within a city, because students have to stay in the city, they have to work in the city. So it's a very good opportunity for them. So as far as the college is concerned, we are providing, as I said, we are in #1 ranking in student satisfaction, and we are providing lots of support from very first day. We are providing a dedicated airport pickup to each and every student. It's free of cost. We are not charging anything. So it's a free airport pickup for the student. We are providing good homestay facility within a city in very affordable price. Definitely we will be supporting student in each and every step to for the homestay facility, obviously. Second thing, the living expenses in this particular city. Living expenses is quite
affordable as compared to bigger cities like Vancouver, Brampton, Calgary. So these kind of cities are very much what you can say expensive in terms of standard of living and expenses. So here in Cranbrook, living expenses is quite low, but the standard of living is very high. So student will be getting good standard of living in a very low cost. Second thing, the cost of our programs. So affordability is a very big thing for international students, obviously for Indian students, because their parents have to pay the tuition deposits. So our each and every program are from very good courses, and definitely with a very affordable fee structure. The most important thing I would like to share about the intake. We are open for September intake. Yes, we are entertaining applications for September intake, and we are providing our offer letters within 48 hours. Usually our TAT will be 7 days, but in this particular scenario, in COVID-19 situation, our international team is very working very proactively as of now. So they are providing offer letter within 40 years to 72 hours. So student will be getting that kind of benefit also. So if I talk about the programs what we are offering, so we have each and every program for each and every stream, which is for art students, also for commerce students, for science students. So the general program what we have are associate degrees, diplomas, and PG diplomas. So as requested by Sunshine Immigration Consultancy, that there is a mixed audience in this particular Skype session. So there will be some parents also who are I mean listening to this or watching this particular session. So I would like to discuss few things in English and in Hindi, so that will be easy for them to understand what we are offering. So as far as the program is concerned, as I said, we have different types of programs. So अगर मैं programs की बात करूं, जिन बच्चों के पास आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तीनों स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर बच्चे ने एसोसिएट डिग्री करनी है, हमारे पास 6 ऐसी एसोसिएट डिग्रीज हैं जिसमें बच्चे को यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज में विद क्रेडिट्स. सो हमारी जो एसोसिएट डिग्रीज हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए, एसोसिएट ऑफ साइंस, एसोसिएट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड एसोसिएट ऑफ प्री बायो मेजर साइंस. एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, एसोसिएट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड सोशल वर्क एसोसिएट ऑफ आर्ट्स. सो ये जो सारी एसोसिएट डिग्रीज हैं, इसमें बच्चों को 2+2 मॉड्यूल से उनको जो प्रोग्राम डेफिनेटली हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें उन्हें यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र मिल जाता है. यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र से बच्चों को क्या होता है कि अगर वो हायर स्टडीज़ के लिए देखते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है. 2 यूनिवर्सिटीज़ हमारी जिसके में हम यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज. अगर मैं बात करूँ हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम की, सारे डिप्लोमा प्रोग्राम अलॉन्ग विद द डिग्रीज, ये सारे प्रोग्राम 2 साल के हैं, जिसमें हम 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. इन 2 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर बच्चे अपना प्रोग्राम कंप्लीट करके 3 इयर्स के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं. उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ओपन पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है. हमारा एक प्रोग्राम है जो 4 ईयर का BBA है, ये कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम है. इसमें भी बच्चे को 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा ऑब्वियसली. तो अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं, हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम से, बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग एंड जनरल. ये उन बच्चों के लिए है जो कॉमर्स स्ट्रीम के साथ है और अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं. हमारे पास उन बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं. If I talk about criminal and social justice, if I talk about tourism management diploma and hospitality management diploma, these 2 programs, tourism management diploma and hospitality management diploma, are very popular program in international student, because इसमें बच्चे को job opportunities बहुत ज़्यादा मिलती है.
बिगनिंग में मैंने बोला था कि जो पर्टिकुलर सिटी है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। सो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है क्रैनब्रुक के अंदर जहाँ पे बच्चों को ऑटोमेटिकली बहुत सारी जॉब मिल जाती है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री ही उसके ऊपर चल रही है, जो इनकी इकोनॉमी है उस पर रन करती है। तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के अंदर बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कॉल द रॉकीज़ उनको एक बहुत अच्छा पुश प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चों का करियर से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। मोर ओवर उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिप्लोमा की, तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिप्लोमा 500 आवर्स के पेड इंटर्नशिप के साथ आता है, जिसमें बच्चे को 500 आवर्स का पेड इंटर्नशिप मिलता है। और ये को प्रोग्राम है, लास्ट सेमेस्टर में बच्चों को इंटर्नशिप मिलता है। ये इंटर्नशिप उनका एक तरह से प्री एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, बिकॉज जब बच्चे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा एड ऑन सिचुएशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज द रॉकीज बच्चों के लिए को सपोर्ट करता है ऑब्वियसली इन ईच एंड एवरी स्टेप। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट एंगेजमेंट की, तो डेफिनेटली वी आर डूइंग अ गुड, वी हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम इन आवर कैंपस ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट डेफिनेटली, बिकॉज बच्चों को हम डे 1 से ही सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला फ्री एयरपोर्ट पिकअप तो हम प्रोवाइड करते ही करते हैं। सिटी के अंदर हम बस पास सर्विस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ट्रैवल के अंदर कैंपस में आने के लिए, सिटी में कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूँ कैंपस के अंदर, मान लीजिए हमारे जो इंडियन स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं ट्यूशन्स के ऊपर, और जो ये हमारे बेसिकली इंडिया के कल्चर में है कि ट्यूशन्स बच्चों ने लेनी है। तो अगर किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी सब्जेक्ट में कुछ उसको सपोर्ट चाहिए, तो कॉल द रॉकीज डेडिकेटेड मेंटर प्रोवाइड करता है बच्चे को। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल के अंदर हो, चाहे वो एकेडमिक्स के अंदर हो, चाहे उनके प्रोजेक्ट मेकिंग के अंदर हो, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट या कोई हेल्प चाहिए, तो उनको डेडिकेटेड मेंटर प्रोवाइड करते हैं। वो उन्हें हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कैंपस के अंदर जो हमारी फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो एक बहुत अच्छी, क्योंकि हमारी जो लैब्स है बहुत हाईटेक लैब्स है, डिजिटल लाइब्रेरीज है, हमारा जो ग्राउंड है ओलंपिक साइज जितना बड़ा ट्रैक एंड ग्राउंड है। कैंपस के अंदर भी हमारे पास पार्ट टाइम वर्क अवेलेबल है बच्चों के लिए अगर वो करना चाहते हैं, बट हम ज़्यादा सजेस्ट यही करते हैं बच्चों को कि आप सिटी में पार्ट टाइम वर्क देखिए, जिसमें उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। और क्योंकि बच्चों को 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क करने को मिलता है, तो पार्ट टाइम वर्क के अंदर क्या होता है, बच्चे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज सिटी के अंदर मिल जाती हैं और वेजेस भी ज़्यादा होती हैं, बिकॉज मिनिमम वेजेस वहाँ पे $15 से स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब $12 से $15 के बीच में मिनिमम वेजेस वहाँ पे बच्चों को मिल जाती है, पर आवर की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर मैं कंपेयर करूँ बड़ी सिटी से, वैंकूवर से या कैलगरी से, ऐसी सिटी से कंपेयर करूँ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है ऑब्वियसली, बिकॉज इन सिटीज़ के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बट उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए इमिग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी दिनों तक तो बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाती बड़ी सिटीज़ के अंदर, और मिलती भी है तो थोड़ा सा अंडरपेड होता है। बट कॉल द रॉकीज़ ये थोड़ा सा रखता है, सपोर्ट रखता है कि बच्चों को ये सारी फैसिलिटी सिटी के अंदर ही मिले, और वो हमारे पास डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम है बच्चों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं करूँ, जैसे मैंने बोला पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बारे में तो मैंने बता दिया, 3 इयर्स ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा सभी के साथ है। एक हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है जो किनेसियोलॉजी प्रोग्राम है, ये उन बच्चों के लिए है जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है, फिर भी वो ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं जो फिजियोथेरेपी और किनेसियोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम है। तो बेसिकली ये किनेसियोलॉजी प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो करना चाहते हैं, बट रिक्वायरमेंट हमारे मेजोरिटी ऑफ द प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट मैथमेटिक्स की है। बाकी 3 प्रोग्राम जो मैंने आपको बताए हैं, क्रिमिनल सोशल जस्टिस, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिप्लोमा एंड टूरिज्म मैनेजमेंट डिप्लोमा, इन तीनों प्रोग्राम के अंदर हमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जनरल रिक्वायरमेंट की बात करूंगा, सभी प्रोग्राम की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अगर आपको जाननी है तो डेफिनेटली आप द सनशाइन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट मैं जनरल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। सभी प्रोग्राम की जो जनरल एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो 10th एंड 12th में 50% मार्क्स हमें चाहिए, बिकॉज ये जो क्राइटेरिया है हमारे, हमें 4 कोर्स सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स हमें चाहिए। आईएलटीएस रिक्वायरमेंट जो हमारे यूजी प्रोग्राम है, जो हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम है, यूजी प्रोग्राम के अंदर 6 नो बैंड लेस देन 6 आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है।
और जो हमारा पीजी प्रोग्राम है, हमारे पास सिर्फ एक पीजी प्रोग्राम है विच इज़ सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है बिकॉज इसको किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई कर सकता है. एनीबडी फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. So this program is very much popular, Sustainable Business Practices. It's a PG program, and IELTS requirement will be 6.5, no band less than 6. General requirement will remain the same, which is 50% marks in 10th and 12th, and obviously in graduation. हम PTE भी एक्सेप्ट कर रहे हैं. यूजी बच्चों के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है PTE की, इन ईच मॉड्यूल वी वांट 50, no module less than 50. And for PG it's no module less than 58. I repeat, for PT the requirement will be no module less than 50, and for PG no module less than 58. अभी पर्टिकुलर करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं कि अगर कोविड-19 की वजह से क्या कॉलेज ने क्या सपोर्ट दिया है बच्चों को, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने +2 के मार्क्स का भी वेट कर रहे हैं, जिनका अभी आइल्स भी बीच में रुका हुआ है, वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं. सो अभी उनके पास कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है बिकॉज उनके पास रिजल्ट ही नहीं है. सो उस केस में हम बच्चों से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि अगर आप ड्यूलिंगो के साथ अप्लाई करते हैं तो हम उन बच्चों को भी एंटरटेन कर रहे हैं. तो मिनिमम स्कोर रहेगा 110 ड्यूलिंगो के साथ. एंड अगर बच्चे के पास 12th का मार्कशीट अभी नहीं आया है, उसने एग्ज़ाम दे दिए हैं बट वो अभी वेट कर रहा है 12th, तो वो कंडीशनल ऑफर लेटर के साथ भी अप्लाई कर सकता है अलॉन्ग विद देयर 10th एंड 11th के मार्कशीट के साथ. सो ये सपोर्ट हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ. इस पूरे जो अगर मैं बताऊँ जितने भी हमारे प्रोग्राम है, सबका एनुअल फी स्ट्रक्चर बहुत ही अफोर्डेबल है. हमारा पर सेमेस्टर का फ़ी है 6,325 पर सेमेस्टर का फ़ी 6,325. ये हमारा पर सेमेस्टर का फ़ी है. ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर पब्लिक कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूट्स. ऑब्वियसली बिकॉज पब्लिक कॉलेज की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, that they have to provide a good quality of education in a very affordable manner. So we are doing the same, and we are providing each and every support to our student. जैसे मैंने बोला सेमेस्टर फ़ी है. एनुअल फ़ी अगर मैं वैसे बात करूं तो 12,700 के करीब बन जाती है एनुअल फ़ी. और हमारा एक जो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट डिप्लोमा है उसकी 13,000 के करीब बनती है. वो एक वो प्रोग्राम है, सो उसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है बट बिल्कुल ही अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस. तो अगर मैं बात करूं अभी करंट सिनेरियो की, यूजुअली हम SDS वाले बच्चों को ही लेते हैं. उसके अंदर ये होता है कि बच्चों को 1 ईयर का ट्यूशन पे डिपॉजिट पे करना पड़ता है. तो अभी करंट सिनेरियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों से 1 ईयर का ही सेमेस्टर फ़ी ले रहे हैं और उनको LOA प्रोवाइड कर रहे हैं. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको पता है कि करंट का सिनेरियो आगे जाके कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है सभी इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, बिकॉज सब ने अपने इनटेक जो उनके मई इनटेक थे वो सभी ने इनटेक सितंबर में शिफ्ट कर दिए. तो स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी के टाइम पे ज़्यादा है. अगर वो कोशिश करेंगे कि हम आगे जाके फ्यूचर में जाके अगर हम अप्लाई करें तो आपके पास सीट्स ही अवेलेबल नहीं रहेंगी, बिकॉज ऑलरेडी एक पूरा इनटेक सितंबर में शिफ्ट हो गया है मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स का. मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँगा, उसका भी इनटेक मई का पूरा सितंबर में हो गया और सितंबर की सीट्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं. तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए. कॉलेज ऑफ रॉकीज़ हालांकि काफ़ी सारे कंडीशनल ऑफर लेटर्स के साथ आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है. जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई विदाउट योर एकेडमिक्स. एंड आपके पास अगर आइल्स भी नहीं है तो ड्यूलिंगो के साथ आप 110 स्कोर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑफर लेटर की बात जैसे मैंने आपको बता दी 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर हम ऑफर लेटर अभी करंट सिनेरियो में प्रोवाइड कर रहे हैं. वैसे यूजुअल डेज में हमारा 7 डेज़ का टैट रहता है, 7 वर्किंग डेज़ का बेसिकली. एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. $100 हमारी एप्लीकेशन फ़ी है. इट्स नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेस बहुत इजी है. किसी भी एप्लीकेशन करने से पहले हम असेसमेंट करते हैं. सो मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन द सनशाइन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के साथ शेयर कीजिए. वो हमें एप्लीकेशन देंगे, हम उसे असेस करेंगे और आपके पास एक रिवर्ट जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं.
जैसे मैंने बोला प्रोग्राम हमारे पास काफ़ी सारे हैं उन बच्चों के लिए भी, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, तो डेफिनेटली सभी बच्चों के लिए हमारे पास प्रोग्राम्स है। मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हमारे बहुत ही कंपल्सेशन है 12th की मैथमेटिक्स की, बट डेफिनेटली जो मैंने बोला कि अभी बच्चों के पास रिजल्ट भी नहीं आए हैं +2 के, तो हम कंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी। जैसे मैंने बोला पीटी भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम ओपन बोर्ड के बच्चों को अभी हम एंटरटेन नहीं करते हैं, हम सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट और जो रेगुलर बैचलर्स वाले बच्चे हैं, कॉलेज वाले बच्चे, उन्हीं को ही हम अभी फ़िलहाल एंटरटेन करते हैं। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को ही हम अभी एंटरटेन करते हैं। प्रोसेस मैंने बहुत बता दिया, इजी प्रोसेस है। सो आज के सेशन के अंदर मैं यही सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अभी मैं थोड़ा सा टाइम आपकी क्वेरीज़ पे भी लेना चाहूँगा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि साथ साथ काफ़ी सारी क्वेरीज़ हमारे पास आ रही हैं, बच्चों की भी और शायद उनके पेरेंट्स की भी। सो इसमें एक पर्सन लिखा है कि वर्क परमिट हो सकता है। तो वर्क परमिट की अगर मैं बात करूं, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की मैंने बात करी है, PSW जिसे हम लोग कहते हैं, तो 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा सभी प्रोग्राम के साथ अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम हमारे रेगुलर प्रोग्राम है, 2 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो सभी प्रोग्राम के साथ 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अवेलेबल है। ऑब्वियसली आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, आप बीच में से प्रोग्राम छोड़ नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लीट करने के बाद ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए आप एलिजिबल डेफिनेटली हो जाएंगे, बिकॉज ये पब्लिक कॉलेज। और इनटेक के बारे में मुझे किसी ने पूछा है, ये मिस्टर प्रभजोत सिंह हैं। सो प्रभजोत, इनटेक हमारा सितंबर इनटेक हमारा ओपन है अभी, और सितंबर इनटेक के लिए हम बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मेन इनटेक हमारा ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है सितंबर के अंदर, तो अभी जो सिचुएशन है कनाडा के अंदर थोड़ी बेटर होती जा रही है, तो सभी इंस्टीट्यूट अपने इनटेक्स हैं वो वही रख रहे हैं जो यूजुअल इनटेक्स हैं। जैसे सितंबर इनटेक सभी का इनटेक रहता है, तो सितंबर इनटेक के लिए डेफिनेटली हम भी बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, बट हम ये भी सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों को हम किसी ना किसी तरह का कंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड करें, जिससे वो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करा सकें। फ़ी के लिए भी जैसे हम यूजुअली 1 year की ट्यूशन पे डिपॉजिट मांगते हैं, बट अभी आप अगर 1 सेमेस्टर की फ़ी भी डिपॉजिट कराएंगे तो डेफिनेटली हम आपको LOA प्रोवाइड कर देंगे। वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें कॉलेज रॉकीज़ की, अगर मैं वैसे बात करूं तो हमारा वीज़ा सक्सेस रेट 98% है, बिकॉज ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ही ऐसा प्रोविंस है जिसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। खासकर उन बच्चों के लिए, अगर स्टडी वीज़ा की बात करूं, उनके लिए ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोविंस रहता है इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। चाहे वो वीज़ा सक्सेस रेट की बात करूं, चाहे मैं किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, हर चीज़ के लिए ये जो प्रोविंस है ये एनी डे में एड ऑन सिचुएशन क्रिएट करता है। तो डेफिनेटली वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। मिस्टर NK शर्मा इन्होंने पूछा है व्हाट आर द पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मैंने बोला पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं सिटी के अंदर। इनकी इकोनॉमी, जो मेजर इकोनॉमी है इस पर्टिकुलर सिटी की, वो रन करती है माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इस तरह के काम यहाँ पे ज़्यादा बच्चों को मिल जाते हैं। खासकर ये जो सिटी है क्रैनब्रुक, ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सिटी है, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, ईटरीज हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं। तो सिटी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल जाती है, बिकॉज 20 hours पर वीक पार्ट टाइम वर्क बच्चे को करने को मिलता है। तो 20 hours का 20 hours बच्चा यूटिलाइज करता है, बिकॉज जो हमारी क्लासेस हैं वो 2.5 से 3 दिन की क्लासेस हमारी होती हैं हफ्ते के अंदर। पर वीक 2 to 3 days की, 2.5 and 3 days की क्लासेस जो हमारी होती हैं। तो बच्चों को 20 hours पर पार्ट टाइम 20 hours पर वीक जो पार्ट टाइम वर्क है वो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अर्निंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी सिटी के अंदर भर कर है। एंड इसमें मैं एक और पूछा है कि बैकलॉग्स। यस, सो बैकलॉग्स की बात अगर मैं करूं, सो बैकलॉग्स यूजुअली हम, अगर बच्चे ने 3 years का ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है मान लीजिए, तो हम मैक्सिमम 6 बैकलॉग्स ले सकते हैं। मतलब टेक्निकली 2 बैकलॉग्स होगी पर ईयर,
अगर बच्चे ने मान लीजिए 4 साल का अपना डिग्री किया हुआ है, मान लीजिए बीबीए 4 साल का होता है, इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम 4 साल के होते हैं, तो अगर बच्चे ने 4 साल का किया हुआ है, 4 इयर्स का अगर बच्चे ने किया हुआ है, तो डेफिनेटली हम 8 बैकलॉग्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस बैकलॉग के साथ साथ मैं गैप्स की भी बात कर देता हूँ। मान लीजिए अगर आपने +2 किया है, +2 के बाद मैक्सिमम गैप अगर आपका 3 इयर्स का है, मैं सिर्फ स्टडी गैप की बात कर रहा हूँ, स्टडी गैप से ही हम असेस करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। सो अगर बच्चे ने +2 किया है और उसका गैप 3 साल के अंदर अंदर उसका गैप है स्टडी से, और वो अप्लाई करता है प्रोग्राम के लिए, यूजी प्रोग्राम के लिए, तो हम उस बच्चे को एंटरटेन कर लेते हैं। अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ, पीजी प्रोग्राम की बात करूँ, तो बैचलर्स के बाद मैक्सिमम 5 इयर्स का गैप हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। +2 के बाद 3 इयर्स का मैक्सिमम गैप, एंड बैचलर्स के बाद 5 इयर्स का गैप मैक्सिमम। बट इट शुड बी जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड होना चाहिए कि आपका ये गैप किस वजह से है। कुछ बच्चे बैचलर्स करने के बाद जॉब करने लग जाते हैं या किस तरह का कोई कोर्स करने लग जाते हैं, डेफिनेटली आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बिना जस्टिफिकेशन के हम बच्चों को एंटरटेन नहीं करते हैं। पीजी कोर्सेज के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए और बैंड स्कोर, ये हरवीर सिंह जी ने पूछा है। तो पीजी प्रोग्राम के लिए डेफिनेटली जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल रहेगी। 10th एंड 12th में हमें 50% मार्क्स चाहिए, बैचलर्स में हमें 50% मार्क्स चाहिए। मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट +2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर 50% मार्क्स हमें चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। और अगर बच्चे के पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो उन बच्चों को हम पीजी प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड कर सकते। आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 नो बैंड लेस देन 6 है पीजी प्रोग्राम के लिए। लिविंग एक्सपेंसेस, जी लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर मैं बात करूं मंथली लिविंग एक्सपेंसेस की, तो $600 से $700 के बीच में बच्चों को लिविंग एक्सपेंसेस, होम स्टे फैसिलिटी सिटी के अंदर मिल जाती है, कॉलेज के पास ही है, बिल्कुल ही सिटी के अंदर उनको मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लिविंग एक्सपेंसेस के साथ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, फ्री वाईफाई, फ्री टेलीफोन, सारी एमिनिटीज़ के साथ उनको लिविंग एक्सपेंसेस सिटी के अंदर ही मिल जाती है। बिकॉज बच्चों को पार्ट टाइम वर्क भी सिटी के अंदर ही करना होता है, तो उनको जॉब ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस या जो उनकी होम स्टे फैसिलिटी है वो सिटी के अंदर ही प्रोवाइड हो जाती है बहुत ईजीली। पीटी का रिक्वायरमेंट बच्चों ने पूछा है। सो ये प्रिंस हैं। प्रिंस, पीटी का रिक्वायरमेंट बेसिकली अगर मैं बात करूं यूजी प्रोग्राम के लिए 50 मॉड्यूल जो मिनिमम स्कोर हमें चाहिए, नो मॉड्यूल लेस देन 50 फॉर यूजी प्रोग्राम, एंड पीजी प्रोग्राम के लिए 58 हमें स्कोर चाहिए, नो मॉड्यूल लेस देन 58। किसी भी मॉड्यूल के अंदर हमें 50 से कम स्कोर नहीं चाहिए यूजी प्रोग्राम के लिए, डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। और पीजी प्रोग्राम है हमारा, एक ही प्रोग्राम है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए 58 स्कोर चाहिए सभी मॉड्यूल के अंदर। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये पीटी की है। और जैसे मैंने बताया हम अभी ड्यूलिंगो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो 110 मिनिमम स्कोर रहेगा। ओके, सो ज्वाला प्रसाद शर्मा जी ने पूछा है कि इज़ देयर एनी पीजी प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। तो सर, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पीजी प्रोग्राम इन होटल मैनेजमेंट, बट वी हैव अ डेडिकेटेड प्रोग्राम which is sustainable business practices. This is the only program we are offering for the student who want to complete their PG degree diploma in British Columbia and with College of Rockies obviously. So dedicated program होटल मैनेजमेंट में नहीं है। होटल मैनेजमेंट का हमारा सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, वो एक को प्रोग्राम है और वो एक यूजी प्रोग्राम है। बट डेफिनेटली बीएससी करने के बाद आप वो प्रोग्राम कर सकते हैं, बट वो पीजी प्रोग्राम नहीं होगा, वो एक यूजी प्रोग्राम ही होगा, एक डिप्लोमा प्रोग्राम होगा। पीजी प्रोग्राम सिर्फ हमारे पास एक ही है। बट यस, आप बीएससी करने के बाद आप उस प्रोग्राम को डेफिनेटली कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है, 10th एंड 12th में 50% मार्क्स, बैचलर्स में 50% मार्क्स, और आइल्स रिक्वायरमेंट 6 नो बैंड लेस देन 6। इसमें हमें मैथमेटिक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर अभी तक दे दिया है, मुझे और आगे क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं। So thank you so much guys, thanks for your time, and I would like to thank the Sunshine Immigration Consultancy and to Sivaji also
for conducting this particular session for the student, for the benefit of the student. And we are open for September intake, and I request each and every student to apply with your application and contact the Sunshine Immigration as soon as possible, because we are open for our September intake and we are accepting application for our September intake. So thank you so much, guys. Stay safe, stay healthy, and try to make your future bright with Call of the Rockies, obviously. Thank you. Have a nice day. Bye bye.